صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ الشیخان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ظلم تو یقیناً ظلم ہے، خواہ وہ مالدار آدمی کرے تب بھی، غریب آدمی کرے تب بھی، لیکن مالدار کا تذکرہ بالخصوص اس لیے فرمایا کہ کیونکہ مال کے ہوتے ہوئے صاحب حق کو حق نہ دینا یہ ڈبل زیادتی ہے۔ ایک کسی کا حق دبایا ہوا ہے اور اس کی ادائیگی کرنا اس پر لازم ہے، لیکن غریب ہے، فقیر ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں تو یہ اس کا ایک عذر بنتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں۔ لیکن اگر اس کے پاس مال و دولت موجود ہے، اس کے باوجود وہ ادائیگی نہیں کر رہا تو ایک حق بھی دبایا ہوا ہے، اوپر سے زیادتی بھی کر رہا ہے، یعنی استطاعت کے باوجود ادا نہیں کر رہا، تو یہ اس کے لیے دگنا جرم ہے اس کا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر غنی سے مراد بالخصوص وہ ہے جو کسی سے غربت کی حالت میں، فقر و فاقہ کی حالت میں، ضرورت کے وقت میں قرضہ لے اور بعد میں اس کو اللہ تبارک و تعالی کہیں سے مال و دولت عطا فرما دے۔ اب مال و دولت آنے کے باوجود وہ دائن کو اس کے مطالبہ کرتے کرتے پھر بھی اس کو ادا نہ کرے۔ دائن اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا قرض واپس کرو، اور اب یہ مالدار بھی ہو گیا ہے، اب اس کے پاس واپس دینے کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے آج دوں گا کل دوں گا، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے اس پر ظلم ہے۔ کیونکہ ظلم کہتے ہیں عربی میں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو رکھنا اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں۔ مثال کے طور پر جوتے اب پاؤں میں پہننے کے لیے ہیں تو ظاہر ہے اس کو سر پہ رکھنا یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس سے وہ مقصد حاصل کرنے کے بجائے اس کو کسی اور تصرف میں استعمال کرنا یہ اس چیز کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اسی طرح اب جب اس کے پاس مال آ گیا تو جو اس کی پاس مال و دولت ہے تو اس میں اس دائن کا بھی حق ہے، جس کا اس نے قرض دینا ہے اس کا اس میں حق ہے۔ اب حق دینا تو اس کو چاہیے، لیکن یہ اس کو دینے کے علاوہ کہیں اور استعمال کر رہا ہے۔ وہ رقم جو دائن کو دینی چاہیے اس کو دینے کے بجائے کسی اور جگہ پر رکھ رہا ہے، کسی اور جگہ استعمال کر رہا ہے اپنی ضروریات میں، تو یہ بھی ایک اعتبار سے گویا ظلم ہو گیا۔ ترکیب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں مطلوب مضاف ہے، الغنی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ظلم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ سید القوم فی السفر خادمہم، رواہ الباہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم ہوتا ہے۔ قوم کا سردار سفر میں قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص دو پیغام دیے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ کہ اگر کسی کو امیر بنا دیا جائے، کسی کو بڑا بنا دیا جائے کسی معاملے میں، بالخصوص سفر کے موقع پر، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرے، اور یہ نہیں کہ بڑا ہونے کے ناطے ان سے کام کرواتا رہے اور خود آرام پسند بن جائے۔
आराम पसंद बनने के बजाय इसे चाहिए कि कौम की खिदमत करे, उनके मामलात को देखे, जिस तरह दूसरे काम शाम करते हैं, दूसरे मामलात देखते हैं, तो इसको भी देखने चाहिए। कोई अपना अपना इजाफी प्रोटोकॉल इसे नहीं लेना चाहिए। और दूसरा मतलब इसका बाज़ हज़रात ने यह भी लिखा, दूसरा पैगाम यह है कि खादिम होता ही, अमीर होता ही वही है जो खिदमत गुजार हो। सफ़र के अंदर जो कौम की खिदमत कर रहा है तो उसी शख्स को अमीर बनाना चाहिए, उसी को बड़ा बनाना चाहिए, जो सबके हुकूक का ख्याल करता हो, सबका लिहाज करता हो। और दोनों तरह के मतलब मुहद्दिसीन ने जिक्र फरमाए हैं। आजकल जैसे हमारी क़ियादतें हैं मुआशरे में, अगर हम देखें तो बड़ा अफसोस का मकाम है कि बाज़ इलाकों में लोगों के पास पीने तक पानी नहीं है, और वहाँ जो है एसी वाले कमरों में बैठकर हमारे एमपीए या जो भी बड़े हैं वहाँ के बड़े हजरात एसी वाले कमरों में बैठकर मिनरल वाटर पीकर वहाँ वो मुशावरत करते हैं कि इस इलाके में पानी कैसे लाया जाए, और पानी फिर भी नहीं आता। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, और जो सरदार है उनके पास इतना खाना है कि कूड़ा करकट में बाकायदा फेंका जा रहा है, इजाफी है। तो ऐसे मामलात जब आते हैं तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से, उनके अहकामात से ये रूगर्दानी होती है। एक साथी ने सवाल किया हुआ है कि यहाँ सफ़र से क्या मुराद है। सफ़र से आम सफ़र मुराद है। कहीं भी आप जा रहे हैं, रास्ते में 2-4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, आगे शायद आ जाए किताब में, 2 हों तब भी उनमें से एक को अमीर बना लेना चाहिए, 10 हों तब भी किसी एक को अमीर बना लेना चाहिए, बड़ा बना लेना चाहिए, तो ताकि मामलात सबके देखे जा सकें, निपटाए जा सकें। और कहीं आप ठहरते हैं तो बात करने वाला एक साथी मुतअय्यन हो, एक साथी मुतअय्यन हो जो बात करे और जो भी मामलात हैं उसको देखे, हर बंदा अपनी जगह पर ना देखे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र में किसी को अमीर बना लेना चाहिए। तो यहाँ बता दिया कि जो अमीर है या सरदार से मुराद भी यहाँ पर अमीर ही है, बड़ा है, तो वो कौम का खादिम होता है, उसे चाहिए कि वो लोगों की खिदमत करे। बाकी जो मैंने जिन हजरात की मिसाल दी वो भी ज़ाहिर है सफ़र करके उन इलाकों में पहुँचते हैं जहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं या दूसरे मामलात, ज़ाहिर है उनकी खुद रिहाइशें तो वहाँ पर नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अगर हों भी सही तो उसके बावजूद भी वो लोग उन लोगों के बारे में जो सोच रखते हैं, जो मामलात जिस अंदाज में तय करते हैं, ज़ाहिर है एक कौम के सरदार का ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हम पढ़ते रहते हैं, सीरत में देखते हैं उनका क्या तरीक़ाकार हुआ करता था कि ग़ुलाम के साथ जा रहे हैं तो बारी बारी से सवारी पर सवार हो रहे हैं। अगर किसी के घर राशन पहुंचाना है तो अपने कंधे पर उठा के ले जा रहे हैं। खादिम को भी कह सकते थे, बल्कि खादिम ने कहा भी कि मैं छोड़ आता हूं। फरमाया कि अगर क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठा सको तो फिर ले जाओ। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन की समझ अता फरमाए। जी, सैयदुल कौम फी सफ़र खादिमुहुम, तरकीब के हवाले से सैयद मुज़ाफ है, कौम मुज़ाफिल है, मुज़ाफिल मिलकर जुल्हाल, फी सफ़र जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगा साबित उनके साथ, और हुआ ज़मीर उसकी फ़ाइल हो जाएगी। इसमें फ़ाइल के साथ मिलकर जार मजरूर से मिलकर ये हाल बन जाएगा सैयदुल कौम का, हाल जुल्हाल मिलकर मुब्तदा, खादिमुहुम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुका शै यामी व युसम्मी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, रवाहु अबू दाऊद।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी चीज़ से तेरी मोहब्बत तुझे अंधा और बहरा बना देती है। इस हदीस मुबारक में भी पैगाम है, इस बात का पैगाम है कि किसी चीज़ के साथ हद से ज़्यादा मोहब्बत ये शरीयत में कोई पसंदीदा अमल नहीं है। मोहब्बत अगर होनी चाहिए तो फ़कत अल्लाह तबारक व तआला से, जो वहदहु ला शरीक है, जिसका कोई हमसर भी नहीं, जिसका कोई हम पल्ला भी नहीं। तो अल्लाह ताला से अगर अंधी मोहब्बत भी हो, बहरी मोहब्बत भी हो, और यानी जिसमें किसी चीज़ का ख्याल न किया जाए, तो वो भी इंसान को नफ़ा बरहाल देती है। लेकिन यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद दुनिया के मालो मता को बयान करना है कि किसी चीज़ से जब आपको मोहब्बत होती है तो आप उसकी मोहब्बत में, खा वो इंसान हो, खा वो कोई औरत हो, मर्द हो, खा वो कोई सामान हो, खा कोई दुनिया का मालो मता हो, कोई भी चीज़ हो, जब आपको किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है तो आप उसकी मोहब्बत में उसके तमाम अयूब को भूल जाते हैं। ये मतलब है अंधा होने का कि सब कुछ वाज़े होने के बावजूद आपको उसके अयूब नज़र नहीं आते, और अगर कोई आपको बताता है तो आप बहरे बन जाते हैं, यानी सुनते तो हैं लेकिन आपको उसके अयूब सुनाई नहीं देते। सुनने के बावजूद आपको समझ नहीं आती कि जो मेरा महबूब है उसके अंदर यह ऐब भी हो सकता है, या आप देखते हैं तो उसकी सही गलत चीज़ की भी सही तावील करने की कोशिश करते हैं। ये इंसान का खासा है, फितरत है, हम सब जानते हैं। और अगर किसी से इंसान को नफरत हो जाए तो उसके अच्छे अमल की भी इंसान बुरी तावील कर लेता है, उसको बुरा बना देता है, और जिससे मोहब्बत होती है तो उसकी बुरी चीज़ को भी अच्छा बना देता है। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बिलखुसूस मोहब्बत में और बिलउमूम हर चीज़ के अंदर गुलूव करने से मना किया जा रहा है कि किसी चीज़ के अंदर गुलूव नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की शरीयत ने हुदूद व क़ुयूद बयान की हैं, तो उन हुदूद व क़ुयूद के दायरे में रहते हुए, मिसाल के तौर पर बीवी से, बच्चों से मोहब्बत का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। बल्कि हदीस मुबारक में आता है कि अगर दो अजनबी, जैसा कि आम तौर पर हुआ करता है अरेंज मैरिज में, जब शादी होती है, लड़का लड़की को नहीं जानता, लड़की लड़के को नहीं जानती, लेकिन निकाह के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनमें मोहब्बत को पैदा फरमा देते हैं। लेकिन वो मोहब्बत अगर आपको दीनी उमूर से रोकने अगर लग जाए तो वो फिर अंधी और बहरी मोहब्बत बन जाती है, जो शरीयत के अंदर नापसंदीदा अमल है। और अगर शरीयत के दायरा कार के अंदर हो, बीवी बच्चों की वजह से, या कोई भी आपकी चीज़ है, आपका कारोबार है, उससे आप मोहब्बत करते हैं, आपने कुछ जानवर रखे हुए हैं, कुछ परिंदे रखे हुए हैं, आपने कोई भी चीज़ रखी हुई है, उससे आप पसंद करते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपकी अगर नमाज कज़ा हो जाए, उसकी वजह से अगर आपके रोज़े रह जाएं, यानी शरीयत के जो फ़राइज़ हैं बुनियादी, उनमें अगर कोताही होने लगे या किसी हराम काम का इर्तिकाब होने लगे मोहब्बत की वजह से, तो इसकी फिर हदीस मुबारक में मज़म्मत की गई है, इससे मना किया गया है। तरकीब के हवाले से आप जानते हैं हुब यहाँ पर मुज़ाफ है, और चूँकि मज़दर है तो काफ इसका फ़ाइल है, अशै ये मफूल भी है, और मज़दर अपने फ़ाइल से और मफूल भी से मिलकर शिबा जुमला, इसको कहते हैं, शिबा जुमला होकर मुब्तदा। आगे यामी ये फ़ेल व फ़ाइल और मातूफ़ अलैह, व वातिफ़ा युसम फ़ेल व फ़ाइल होकर मातूफ़, मातूफ़ मातूफ़ अलैह मिलकर ये खबर हो गई, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए।